Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and how the month of December 22 is going to pan out for the Taurus Ascendant people. This ascendant is ruled by Venus, and Ascendant Lord Venus is going to be stationed in the 8th house starting from 6th of December. Now when we speak strictly in terms of house placement, this is not considered a very good position. Venus is also the owner of the sixth house of health, disease, debts, and enemies. So, placement of ascendant lord as well as the sixth house lord in the eighth house indicates issues with health. Taurus ascendant people are known to enjoy their life to the extreme because they are ruled by Venus, and in this case, people will tend to overdo things on the enjoyment part, whether it is eating or any other stuff that they enjoy in their respective life, and because of this they are going to fall ill. You should watch out for what you are eating, drinking, and how you are behaving. It should not cross your average limits. Sixth house lord in the eighth house also indicates diseases that are related to the private parts or anal regions. So health becomes a priority in the month of December for Taurus ascendant people. The fourth house lord sun is stationed in the friendly sign in the seventh house till 15th of December, and after that it will join Venus in the eighth house. Ascendant lord is also already in the eighth house as we discussed earlier, and when sun joins in the eighth house, domestic harmony will be impacted due to this movement. Best way to handle this situation is to get involved in research, develop an analytical mindset, or acquire some technical skills. Utilizing the negative energies of this house is key for you to make yourself successful in this month. Mars is going to be stationed in the first house, and while it will continue to provide energy to you in December, this Mars will also make you prone to driving vehicles at a very fast speed because Mars indicates speed, and sign Taurus is also indicator of luxury and especially vehicles because they are also ruled by Venus, and Venus is also currently going through the eighth house. So this creates a position where a person may end up driving their vehicles at a very fast speed, so they need to be very cautious about their speed while driving in the month of December. This Mars will provide an opportunity to excel in business and also a chance for unmarried people to get married because it is going to aspect the house of marriage directly in the month of December. If you want to enter into a new relationship, then also Mars is going to strengthen that probability because it will aspect its own house. Starting a new business also will be favorable for you. So people who have been planning to start a new business, December is a great month for them because they are also getting an additional aspect of Jupiter. The ninth aspect will fall on the house of business. So, as I said earlier, starting your own business is going to be a possibility in this month. Mercury is a very important planet for Taurus ascendant people because it owns both the second as well as fifth houses, and both houses are supposed to give you a wealth from the Vedic astrology perspective. Mercury is also going to be stationed in the eighth house in December. So for people who are involved in the jobs that are shown by fifth house, so all the artists, creators, speculators, month of December is not going to be favorable and they will experience hurdles in their profession. Speculators will experience losses, but if you are involved in a profession that is indicated by the eighth house itself, so if you are connected with any kind of a technical field or research work or even fields like mining, then this month will prove to be favorable for you on the work front. Jupiter continues to pass through the 11th house, and it is considered a very auspicious position for Jupiter. So, people who are freshly married and have been planning for a child, this Jupiter will continue to provide them their blessing till April 2023. This is also a good time to gain knowledge in your desired arena because Jupiter is also a natural significator of higher learning and knowledge. Aspect of Jupiter on the fifth house will also help all the students to excel in their chosen domain. Saturn is going to pass through the ninth house and will continue to pass through the star of Mars.
So if you have a business that is related with foreigners, then Saturn will continue to provide you additional support to all such businesses. So any business which involves dealing with foreigners, operating from an MNC perspective or having an export import business, all of them will flourish in this month. Saturn in the ninth house in their birth chart, they should always aim for going to a foreign country, because this ninth house Saturn opens the doors of progress for them in their career. Now, there are also certain days where a person needs to be very careful. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house, and one should avoid taking all the crucial decisions at this point of time. So for Taurus ascendant people, these dates are 4th and 5th of December, 19th and 20th of December, 23rd and 24th of December, and 31st of December. These are the dates where you need to watch out for. Overall, looking at the ascendant's position in the 8th house as well as the placement of the second, fifth, and fourth lord in the 8th house, I can say that this will turn out to be an average month. But the only way to convert this into a good month is to utilize the negative energies of this 8th house, and you can do all the activities as I have indicated earlier in the video to make this month a successful one. So that's the summary for you for the month of December. So I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश शुक्र अष्टम भाव से भ्रमण करेंगे। यहाँ पे 6 दिसंबर को शुक्र एंटर कर जाएंगे धनु राशि में और अष्टम भाव से गुजरेंगे। तो लग्नेश का अष्टम भाव से गुजरना कोई खास अच्छी पोजीशन नहीं कहलाता है अगर आप भाव के लिहाज से देखें तो। यहाँ पर शुक्र छठवें भाव का भी स्वामी बनता है और छठवें भाव से व्यक्ति की सेहत देखी जाती है। तो छठवें भाव के स्वामी का भी 8वें भाव में जाना लग्नेश भी है, ये कुछ बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना बहुत बलवान हो जाती है। और वृषभ लग्न ऐसा है कि चूंकि शुक्र मालिक होता है इसका, तो ये लोग अपने जीवन को हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं और ये कई बार चीजें जिसको कहते हैं ओवरडू करना वो कर देते हैं। खाते हैं तो खाते ही जाते हैं, पीते हैं तो पीते ही जाते हैं। तो जब किसी चीज की अति हो जाती है तो मनुष्य का शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरडू करेंगे चीज़ों को, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जिसको एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे, तो ये फिर महीने में आपके बीमार पड़ने की संभावना बहुत बलवान हो जाती है। इसलिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आप किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में। और आपका जो भी एवरेज लिमिट है खाने पीने की, उसको आप क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी का 8वें भाव से जाना यानी कि आपके कमर के नीचे के चीजों में भी बीमारी की संभावना दिखाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए आपको हेल्थ के प्रति सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लग्न स्थान से मंगल गुजरेगा, मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र भी अष्टम भाव से यानी कि एक्सीडेंट के भाव से गुजर रहा है। शुक्र के राशि में मंगल का बैठना यानी कि तेज गति अपने आप आ जाती है, और शुक्र अष्टम भाव से गुजर रहा है जो कि आपका एक्सीडेंट्स का स्थान बनता है। शुक्र आपका लग्जरी और व्हीकल्स का भी कारक है। तो अगर आपके पास फोर व्हीलर है या अगर आप टू व्हीलर भी रखते हैं कोई भी, तो उसको बहुत सावधानी से चलाइए, अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए इस महीने में, क्योंकि इस तरह के पोजिशंस में व्यक्ति के तेज गति से वाहन चलाने की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप उस चीज का ध्यान रखिए दिसंबर के महीने में। अभी यहाँ पर एक जो तिगड्डा बन रहा है इन तीन प्लैनेट्स का, बुध शुक्र और सूर्य का अष्टम भाव में, तो उसकी वजह से अष्टम भाव बहुत बलवान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। और इसीलिए मैंने जो एक्सीडेंट्स का आपको बताया था, उसके अलावा भी अष्टम भाव की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको ये महीना ढंग से गुजारना है तो आपको अष्टम भाव की नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए, सूर्य 15 दिसंबर तक तो सप्तम भाव में बैठा रहेगा। इसके बाद 15 दिसंबर के बाद वो यहाँ पर अष्टम भाव में चला जाएगा शुक्र के साथ युति करने के लिए। तो और सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो कि डोमेस्टिक हार्मनी का भी स्वामी बनता है। तो आपके घर में भी अशांति का माहौल बनने लगेगा दिसंबर के सेकंड में हाफ में। तो यहाँ पर जो तरीका है इसको हैंडल करने का, कि आप अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें अगर करते हैं, यानी आप अष्टम भाव से जो चीजें दिखाई जाती हैं, रिसर्च हो गई, उसको अगर आप कर सकते हैं तो, या फिर आपको
को किसी भी तरह का कोई भी कोर्स कीजिए जो कि टेक्निकल स्किल्स आपकी शार्पन करे, या फिर आप कोई एनालिटिकल माइंडसेट तो अपना ही सकते हैं कि हर चीज़ में फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद निर्णय लीजिए, या आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, अपना टैक्स भर सकते हैं इस महीने में। तो आपको आठवें भाव से जुड़ी हुई इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी ये आपका ये महीना थोड़ा सा बेहतर निकलने की संभावना है। नहीं तो इस तरह के प्लेसमेंट में फिर व्यक्ति को समस्याएं आती हैं। तो अगर आप यहाँ की इस नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये महीना आपका फिर अच्छा निकल सकता है। अदरवाइज फिर ये बीमार पड़ने वाला प्लेसमेंट है लग्नेश और छठवें भाव के स्वामी का अष्टम में जाना। मंगल जैसा मैंने आपको बताया प्रथम भाव में बैठा रहेगा, तो यहाँ पे ये व्यक्ति को ऊर्जा देता रहेगा, और वो गति का गलत इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है वो भी मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे बैठ के मंगल अपने ही भाव को देखेगा। तो अच्छी चीज जो होगी इस महीने में कि आप अगर शादी करना चाहते हैं या आप कोई अपना नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उस सब के लिए ये मंगल आपको सपोर्ट करेगा, और इसको एक एडिशनल सपोर्ट गुरु का भी मिलेगा क्योंकि गुरु नवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो दोनों बड़े प्लैनेट्स आपके सप्तम भाव को देखेंगे दिसंबर के महीने में। तो ये अगर आप दोनों ही चीजों में से कुछ करना चाहते हैं तो आपको मंगल और गुरु दोनों का सपोर्ट मिलेगा, और ये बहुत अच्छा समय है अपना स्वयं का बिजनेस चालू करने के लिए भी। भाव का स्वामी भी स्वयं के भाव को देखेगा, सप्तम भाव को, और गुरु भी दृष्टि डालेगा। तो ये दोनों ही पोजीशंस बहुत फेवरेबल हैं। देखिए बुध भी अष्टम भाव में बैठा होगा। बुध काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वृषभ लग्न के लिए, क्योंकि ये द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी, और दोनों ही भाव आपके लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी का और पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, यानी कि जो भी पंचम भाव से जुड़ा काम करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, जो भी अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं अपने काम में, स्पेक्यूलेटर्स हैं, उन सब के लिए ये रोड़े क्रिएट करने वाला मंथ बन जाता है, क्योंकि पंचमेश का अष्टम में जाना अच्छा पोजीशन नहीं कहलाता है। यहाँ पे जो एक चीज अच्छी बन रही है वो ये है कि बुध अपने ही स्थान को देखेगा, तो द्वितीय भाव को तो वो मजबूत करेगा ही, लेकिन फिर उसके लिए आपको बुध से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं, जैसे आप ब्रोकरेज रिलेटेड बिजनेसेस में या कमीशनिंग बेस्ड जॉब्स में हैं, कोई भी ऐसी सेक्टर में है जो कि बुध से संबंध रखता है, यानी टेलीकॉम सेक्टर हो गया, पब्लिक रिलेशंस का सेक्टर हो गया, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का बिजनेस है, वो सब के लिए वेल्थ जनरेट करने का काम करेगा, क्योंकि बुध अपने ही भाव को देखेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो द्वितीयेश और पंचमेश में से पंचमेश का अष्टम में जाना, यानी कि स्पेक्यूलेशन में ये गोली देने वाला कार्य करता है। तो उन लोगों को इस समय में लॉसेस होंगे दिसंबर में अगर वो स्पेक्यूलेशन में उतरते हैं तो। और जो भी पंचम भाव के बचे हुए ये हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी कार्य में रोड़े अटकाने का काम करेगा ये बुध दिसंबर के महीने में। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, क्योंकि देखिए तीन प्लैनेट्स यहाँ पर जमा होते हैं, तो तीन प्लैनेट्स जमा होने का और मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ने का मतलब है चार चार ग्रहों का परिणाम आपको मिलेगा इस महीने में अष्टम भाव से जुड़ा हुआ। तो अगर आप रिसर्च में हैं, किसी भी तरह की टेक्निकल फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, माइनिंग में हैं, सीबीआई या कोई भी रॉ इस तरह के संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा प्रोफेशनल फ्रंट पे। एक नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल करने का कारण कैसे, आप अपना पर्सनल टैक्स भर दीजिए, क्योंकि टैक्सेशन भी यहीं से आता है। अगर आप ऑडिट वर्क में हैं तो भी ये आप इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाने में सफल होंगे इस महीने में। देखिए गुरु 11वें भाव से निकल रहा है। गुरु काफी शुभ स्थिति में है 11वें भाव से। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो वो व्यक्ति को संतान देने का योग पैदा करता है। अब गुरु यहाँ पे अप्रैल 2023 तक बैठे रहेंगे तो ये योग तब तक बना रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा ही व्यक्ति को फेवर करती है। अगर आप किसी भी तरह का कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं अपने सेक्टर में, तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु भी ज्ञान का ही कारक होता है। तो ये व्यक्ति को काफी हेल्प देता है इस समय में। और आप अपने कोई भी जो आपने डोमेन चूज किया रहता है जिसमें आप ज्ञान लेना चाहते हैं, उसमें ये हमेशा आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। शनि 9वें भाव में बैठे रहेंगे जनवरी 2023 तक, तो यहाँ पे ये मंगल के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। तो अगर आपका फॉरेनर्स के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवसाय है, धंधा व्यापार है, उसमें ये शनि आपकी बहुत मदद करेगा, और वो फॉरेनर्स की वजह से आपको लाभ भी कमाने का मौका मिलेगा। ये शनि आपको एक एडिशनल सपोर्ट देता रहेगा दिसंबर के महीने में भी। और जिनके भी लग्न कुंडली में शनि 9वें भाव में होता है, उनको हमेशा विदेश जाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये शनि उनके लिए तरक्की के दरवाजे खोलता है। और ये लग्न कुंडली में आपके शनि का नवम भाव में बैठना, ये बहुत स्ट्रांग योग पैदा करता है व्यक्ति के बाहर जाने का।
अब महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब चंद्र आपके 6 8 12 से गुजरता है। इन दिनों में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके कोई क्रिटिकल डिसीजन लेने की क्षमता में कमी आती है। तो जो ये दिन दिसंबर में आपके बनेंगे वो हैं 4 और 5 दिसंबर, 19 और 20 दिसंबर, 23 और 24 दिसंबर और 31 दिसंबर। इन दिनों में सावधान रहिए। और जैसा मैंने पहले बताया, ये पूरा मंथ आपका फोकस अष्टम भाव से जुड़ी हुई नेगेटिव एनर्जीज को यूटिलाइज करने का है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो आपका ये महीना अच्छा निकल सकता है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की वृषभ लग्न के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।